कितना बजे? Okay. Just now I लेट told चल you, रहा na? था तो लेट गाते थे अब Good morning, children. We were covering the fifth lesson of history. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. And we were covering the topic building temples, mosques, and tanks. Have a look. We were covering this topic building temples, mosques, mosques and tanks. mosques and tanks. Okay. We know all these were Yes, ma'am. constructed for whom? Thanks, As far as these temples were constructed, mosques were constructed, and ma'am. tanks were constructed. Okay, these Ma'am, buildings. Yes, beta. मैम देखिए ma'am. बोल रहा है कुछ। अरे यार चैप्टर 4 पे क्वेश्चन आंसर। These were constructed for the general public. As far as the exercises of lesson 4 history are concerned, it will be एक forwarded. कपड़ा लाके उड़ाओ ना, वो क्या उड़ा रहे हो? It will be forwarded tomorrow. Okay. Yes, ma'am. कल मैं आपको एक्सरसाइजेस भेज दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा Yes. और उन बच्चों को भी Yes. बता दीजिएगा, ठीक है ना? So किन बच्चों? we were doing this, and in this what we saw that these temples and the mosque and the tanks, they were constructed. We studied that the Hindu rulers, okay, as far as the Hindu rulers were concerned, the Hindu rulers considered themselves what? The Hindu rulers considered themselves as, वो अपने आप को क्या मानते थे? हाँ, जो हिंदू राजा थे वो अपने आप को क्या मानते थे? मैम महान मानते थे। एज इनकारनेशन ऑफ गॉड, ठीक है ना? वो अपने आप को जो है भगवान मानते थे, ईश्वर का अवतार समझते थे. ओके, बट एज फार एज Yes, ma'am. मुस्लिम्स आर कंसर्न, ओके, ऑन द अदर हैंड वी कैन से, on the other hand, the Muslim rulers, okay, as far as the Muslim rulers were concerned, okay, the Muslims, okay, believed that they were what? वो लोग क्या थे? वो लोग ईश्वर के क्या थे? Shadow of God. Yes, वो ईश्वर के जो है परछाई थे. They believed that they were shadow of God. Okay? मुस्लिम। They were shadow of God. Now see, okay, we were doing this. यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे थे, पेज नंबर 64, ठीक है ना? Have a look, पेज नंबर 64. कौन खास रहा है? Listen, मैं खास रही हूँ और कौन खास रहा है? अच्छा मैम। Listen, children. Have a look. When I was teaching lesson 3, most of the students, they objected. They said that ma'am, it is not Qibla, it is west. तो यहाँ पे देख लो, फिगर 7 में आप देख सकते हैं, what is Qibla? किस पेज नंबर? डायरेक्शन टुवर्ड्स मेक्का, मेक्का की तरफ जो दिशा होती है, ठीक है ना? मेक्का की तरफ जो दिशा होता है उसको किबला कहा जाता है. ओके, यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, फिगर 7 में आप देख सकते हो जमा मस्जिद का, जिसको शाहजहां ने बनवाया था अपने नए राजधानी शाहजहानाबाद में. ओके, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये किला बना हुआ है, ठीक है ना? एंड मुस्लिम्स प्रे इन दिस डायरेक्शन. नाउ सी, एज फार एज द sultans, Muslim sultans. Mute all of you. Have a look. See, an inscription in the Quwat al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin. Okay, देखो, God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. तो who are Moses? Moses and Solomon जो है ये क्या है? ये कानून के रक्षक हैं. Moses and Solomon. Who are they? They are lawgivers. Okay. They are the lawgivers, and Alauddin has been chosen. Alauddin has been chosen by Allah, okay, as a king because he has the qualities. He has the qualities of Moses and Solomon, okay, and the greatest lawgiver and architect was God. और सबसे बड़े जो आर्किटेक्ट हैं और जो न्याय करता है वो कौन है? वो ईश्वर स्वयं है, ठीक है ना? ईश्वर कब किसके साथ क्या करेंगे ये हमें नहीं पता है. ओके, उनकी छड़ी जब गिरती है किसी के ऊपर, ओके, तो उसकी जो उनकी लाठी में जो है इतनी आवाज होती है कि अच्छे जो हैं, ओके, समझ जाते हैं कि ईश्वर क्या चीज है.
ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे इतिहास में हमने पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं जो स्वयं अपने आप को जो है ईश्वर घोषित कर दे रहे थे। आप हिरण्यकश्यपु को देख सकते हैं। हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान समझने लगा था। उसके बाद दक्ष प्रजापति के किस्से आपने सुने होंगे। ओके, वो भगवान शिव को कुछ नहीं समझ रहे थे। तो हिंदू माइथोलॉजी में हमारे ऐसे बहुत सारे जो है राजाओं का वर्णन है जो स्वयं को ईश्वर समझने लगे थे। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। ओके, एंड इन द मॉडर्न डे वी कैन ओके से दैट गॉड इज omnipotent, he is all powerful। ठीक है ना। ओके, when we use this word, when we are using this word, God is okay omnipresent। ठीक है ना, omnipresent एंड ओमनीपोटेंट। जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? ओके, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, वो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर जो है कण कण में मौजूद है, उनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो ओके हर वस्तु में उनका अंश है, हर जगह वो ओके मौजूद है। और ओमनीपोटेंट का मतलब ओके ऑल पावरफुल। ठीक है ना, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। अभी तक जो है साइंस जो है ये पता नहीं कर पाई है, हमारे जो साइंस है, ठीक है ना, ओके, विज्ञान जो है वो अभी तक जो है इस चीज को नहीं पता कर पाई है कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है। Okay, there have been experiments where a person who is about to die has been kept in a box made of glass. Okay, but the scientists, they have still not been able to see the soul, how the soul comes out from the body. Okay, they have not been able to okay get success in this। तो हम कह सकते हैं, और जो वैज्ञानिक लोग भी जो है ओके जो यूनिवर्स से संबंधित जो है पढ़ाई करते हैं या हमें जो जानकारी देते हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक गॉड पार्टिकल है। देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड पार्टिकल। ओके, एंड इट इज दिस गॉड पार्टिकल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मिरेकुलस थिंग्स, मेनी मिरेकुलस थिंग्स। ओके, सो सी, तो सबसे बड़े आर्किटेक्ट कौन है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स? अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स, गॉड इज द ओके मोस्ट पावरफुल आर्किटेक्ट एंड ही इज द लॉ गिवर। उनके ऊपर जो है कोई नहीं है। ओके, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस, केओस मतलब अशांति। ओके, एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? सब चीजें जो है अपने आप जो है ओके अपनी अपनी जगहों पे स्थित हैं। सिमेट्री आप जो है इट इज अ टर्म फ्रॉम मैथमेटिक्स, और आपको पता है कि ओके सिमेट्री में जो है हम क्या करते हैं, चीजों को जो है एक सिस्टमैटिक वे में हम प्लेस करते हैं डिजिट्स को। ठीक है ना। एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, हैव अ लुक, किंग्स वांटेड टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर close relationship with God. Okay, so what we see, the rulers constructed, okay, see, the rulers they constructed places of worship। ठीक है ना, places of worship like what? Temples, okay, mosque, church, gurdwara, all these are what? All these are places of worship, and these were constructed by different rulers at different points of time। Okay, so they are constructing these places of worship okay to prove their relationship, to prove okay their relationship with God। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो अपने भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं। ठीक है ना, वो अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, देवी या देवता के प्रति कितने वो समर्पित हैं और उनका क्या रिश्ता है। ठीक है ना। ओके, अभी भी आप लोग जब YouTube पे भजन सुनते होंगे तो उसमें एक बहुत ही अच्छा भजन जो है आपको सुनने को मिलेगा, भगत के बस में है भगवान। ठीक है ना, तो अगर भक्त चाहे, ठीक है ना, भक्त चाहे तो भगवान को अपने वश में कर सकता है। आपने प्रहलाद की कहानी देखी होगी, कैसे प्रहलाद जो है ओके
विष्णु भक्तों में सबसे परम भक्त कहे जाते हैं प्रहलाद, और कैसे जो है वो एक आवाज पे, ठीक है ना, जैसे ही वो अपने भगवान विष्णु को याद करते हैं वो नरसिंह अवतार लेते हैं, और नरसिंह अवतार लेके जो है हिरण्यकश्यपु को उसका जो है अंत कर देते हैं। भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए हैं, लेकिन जो नरसिंह अवतार हुआ था, ठीक है ना, वो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ले तो लिया था, लेकिन वो शांत नहीं हो पा रहे थे, ठीक है ना। तो आप अगर अपने घर में जो बड़े हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु को भगवान शिव ने शांत किया था। ओके, so what we see is that the person who is the devotee, okay, so what we can say, the devotee, okay, has a true bond, okay, or we can say shares a true bond, ठीक है ना, shares a true bond with his deity, ठीक है। तो यहाँ पे डिवोटी का मतलब क्या हो गया, डिवोटी का मतलब हो गया भक्त, और डेटी का मतलब हो गया ओके आपके भगवान। तो भक्त और भगवान के बीच जो है एक अटूट रिश्ता है, एक अटूट रिलेशनशिप है, ओके, और उसको वो खाली दो ही समझ सकते हैं, उसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति है वो उसको नहीं समझ सकता। आपको पता होगा सूरदास जो है वो आंख से अंधे थे, नेत्रहीन थे, ठीक है ना, फिर भी उन्होंने ऐसे बहुत सारी रचनाएं हमें दी हैं जो कि हिंदी साहित्य में सबसे ऊपर है, ओके, ठीक है ना। ओके, so what we see is as far as this relation between the devotee and the okay deity is concerned, see, rulers also offered patronage to the learned and pious, okay, ठीक है ना, have a look, see, and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm. Real मतलब उनका शासन, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहे हैं, ओके, रूल उनका शासन हो गया, और रियल मीन्स उनका कार्य क्षेत्र, ओके। इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विथहोल्ड रेन, okay, at the same time making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir, okay, just outside Delhi Kuna, okay. Now students, when we were studying this Delhi sultans, we came across a few important cities of Delhi. Can you tell me the three important cities of Delhi? दिल्ली के जो तीन पुराने जो शहर हैं और महत्वपूर्ण शहर हैं उनके नाम आप बता सकते हैं? Anybody? The three important. Yes. What are they? Ma'am, Chandni Chowk. Jahanpana and दिल्ली कुन्हा। दिल्ली कुना और हाँ, और कौन सा है बेटा? और एक है बताओ। Three important cities of Delhi. Okay, one is Shiri, एक श्री है, ठीक है ना, one is Shiri, okay, one is Delhi Kuna, okay, one is Delhi Kuna, and the other one is what? Jahanpana, ठीक है ना, okay. So these are the three important and oldest cities. ये दिल्ली के जो है पुराने शहर, दिल्ली के जो पुराने शहरों में गिने जाते हैं, और इससे संबंधित आपके बुक में मैप है, okay. If you go through your book, okay, you will get important information related to these. See page number 30. Page number 30 निकालो. All of you take out page number 30, map 1. Got it? All of you have got it? Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया? Yes, ma'am. मिल गया। हाँ, इसके अलावा दो और है, देखो, तुगलकाबाद है और आदिलाबाद है, ठीक है ना? तुगलकाबाद, मैम फिरोजाबाद भी है। हाँ, फिरोजाबाद ऊपर की तरफ है, लेकिन पुराने शहरों में ये तीन है,
ठीक है ना। दिल्ली के जब हम पुराने शहरों की बात करते हैं Yes, ma'am. दिल्ली, पूना और जहांपना आते हैं, आते हैं। ओके, now we were talking about Sultan Iltutmish. So what did Sultan Iltutmish do? मैम आपकी आवाज बहुत धीमी। सुल्तान इल्तुतमिश जो है किसको सक्सीड करते हैं? गुलाम वंश के जो वो शासक थे, उनका क्या रिलेशन था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ? हाँ, what was the relation of Sultan Iltutmish with Kutubuddin Aibak? Any idea? मैम वो उनके दामाद थे सुल्तान son-in-law. He was the son-in-law. Yes. Okay. So you see, Iltutmish, okay, he was the son-in-law of Kutubuddin Aibak. ठीक है ना? Was the son-in-law, okay, of Kutubuddin Aibak. ठीक है ना? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है दामाद थे, ओके, और ये ऐबक के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो है ये गुलाम वंश के जो है ये शासक बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बनवाया था देखो, ओके, हम सब में हम ओके, व्हाट ही डिड, ही कंस्ट्रक्टेड a large reservoir. He constructed a large reservoir. Okay, see, he constructed a large reservoir outside Delhi Kohna. Outside Delhi की कोना, ठीक है ना। Okay. क्या कर Have a रहे हो? look. It was called the Haji Sultani or the King's Reservoir. Okay. साहिब अब आलम आपसे पूछा जा रहा है, बोलो क्या कर रहे हो? ये खड़ पेज नंबर 30, all of you. मैं थोड़े ना कर रहा हूँ। Stop talking. Again, take out page number 30. Okay. पेज नंबर 30 आप निकालो। इसमें आपको हौजी सुल्तानी दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Can you find Hauzi Sultani? सबसे नीचे Just below the Qutub Minar. ठीक है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. So, okay, it was called Hauzi. Sultani. Yes, it was called Haji Sultani. Hauzi Sultani. सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वर, ठीक है ना। Yes, आता है उनका रिजर्वर। तो ये बहुत बड़ा सा जो है पानी का जो है एक कुंड ये तैयार करवाते हैं जनता के लिए, ठीक है ना। और इसको जो है हौजी सुल्तानी कहा गया है, ठीक है ना। ओके, सो सी, हैव अ लुक. Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple, mosque. Note this small tank in the Jama Masjid. अब जमा मस्जिद में आपको छोटा सा टैंक दिखाई दे रहा है? Can you see the small tank in Jama Masjid? यहाँ पे फिगर 7 में जमा मस्जिद का चित्र दिखाई दे रहा है आपको? हाँ? Yes. यस मैम Yes, ma'am. जहाँ पे किबला दिया गया है, देखो, हैव अ लुक, किबला जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे वो छोटा सा Yes, ma'am. you can see the small tank out there. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम पेज पर कहाँ है? फिगर 7 पेज नंबर 64. 64 में है, देखो पेज नंबर 64 में आप देख सकते हो स्मॉल टैंक, एक छोटा सा जो है टैंक है उसमें पानी का। ओके, Yes, ma'am. फिगर 8 में आप देख सकते हो। ओके, फिगर 8 में आप देख सकते हैं कौन है भाई? वहाँ पे देखो। ओके, Sing है. यस यस so see, have a look. Sometimes these tanks and reservoirs were part of the temple. कई बार ये जो टैंक होते हैं, अरे चार बहुत तक खोले नहीं क्या हुआ? how much they talk. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर रुद्रा है। Listen children. मैम म्यूट
So what we see is, okay, sometimes these tanks, they were constructed along with the temples, along with the mosque, okay, so that the general public, they can avail the facilities of these tanks. ओके अब जहां तक गुरुद्वारे का सवाल है, आपको पता होगा कि जब कभी भी आप गुरुद्वारे में एंटर करते हैं, ठीक है ना, ओके, द स्टेयर्स, जो सीढ़ियां होती हैं, ओके, सबसे पहले आपको अपने हेड को जो है एक स्कार्फ से जो है कवर करना होता है. इट इज द रिचुअल. ओके, द सिक्स दे फॉलो, दे कवर देयर हेड विथ अ टर्बन. Okay, and after that what they do when they are entering the gurdwara, okay, when they are entering the gurdwara, what do you see? Okay, 3 different stairs are made. Okay, 3 different types of stairs are there, and what you see in the first stair there is water. पहले वाले में जो है पानी रहता है, ठीक है ना, पहले वाले में जो है पानी रहता है, उसमें आप अपने पांव धुलते हैं, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे जो है डोरमैट रहता है, ओके, आपके पांव को सुखाने के लिए, और उसके बाद फिर आप एंटर करते हैं गुरुद्वारे में, आप एंटर करते हैं. सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ हाइजीन. ओके, यू कवर योर हेड बिकॉज यू आर ओके शोइंग योर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द डेटी और द गॉड. ठीक है ना, तो गुरुद्वारे में तो कोई भगवान रहते नहीं है, वहां पे आदि ग्रंथ साहिब रखी रहती है. ओके, ठीक है ना, आदि ग्रंथ साहिब की रखा रहता है, ठीक है, आपको उसी को जो है नमन करके आना होता है. ओके, और गुरुद्वारे की सबसे बड़ी जो चीज रहती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द सिख कम्युनिटी इज दैट ओके एवरीवन इज कंसिडर्ड इक्वल. ओके, दिस इज नॉट देयर इन द हिंदू रिलीजन. People belonging to the Hindu community, what they do, okay, there is this difference. No matter okay how advanced we have become, how modern we have become, but there is inequality. जो पैसे वाले हैं उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, जो गरीब है उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है. There is difference in the prasad also, okay, that is offered to the devotees. And as far as the Gurudwara is concerned, whatever you want, langar is organized. And okay, जो गुरु पर्व होता है उसमें जितने भी सिख समुदाय के लोग होते हैं, उनके घरों में गुरुद्वारे से जो है आटा प्रोवाइड कराया जाता है. Okay, wheat flour is provided, and the ladies they are asked to bring what? They are asked to prepare chapati, and that chapati is circulated. Okay, वही जो रोटी बना के आता है, सारे घरों से रोटी आता है, और उसी रोटी को जो है खिलाया जाता है लंगड़ में. ठीक है ना. So this is one of the important things. Now see why these temples were destroyed. अब हम देख रहे हैं कि जो राजा है, महाराजा है, ये लोग जो है मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, भव्य मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए. अब इन मंदिरों को क्यों नुकसान पहुंचाया जाता था? Okay, why these temples they were being destroyed? Why they were destroyed? Any one reason? I have told you. Why they were destroyed? Ma'am, because of lot of सोने की wealth. वजह से, lot of money. Ma'am, because lot of of the lot लोगों of के लिए gold. ma'am. money. Then because a lot Then of due money. to conflict Due to conflict. with religious. उसे बनवाने मैम में सोने के राजा, When गिफ्ट due to जैसे conflict with religious. मैम उसे बनवाने में राजा अपनी पूरा सुख संपत्ति लगा देता है. Yes, ठीक है ना, because these were the places where the wealth of the king was accumulated. ठीक है ना, राजा का जितना भी ऐश्वर्य होता था वो इन मंदिरों में ही रहता था. ठीक है ना. Yes, ma'am. राजा महाराजा लोग जो है अपने आप को जो है ईश्वर घोषित कर दे रहे थे. ठीक है ना. So see, why were the temples destroyed? Why were the temples destroyed? Where is this Somnath temple? Somnath temple कहाँ है? हाँ? Where is Somnath temple located? हाँ? गुजरात. Somnath temple is located in Gujarat. ये किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? किस भगवान की मंदिर है ये? सोमनाथ किसे कहा जाता है? शिव, शंकर जी को. भगवान शिव का मंदिर है. ठीक है ना. Yes, ma'am. भगवान शिव शंकर का जी. मंदिर है. ओके, हमारे देश में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन सोमनाथ मंदिर का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि इस मंदिर को जो है 17 बार लूटा गया था.
Okay, 17 times. 17 times this temple was attacked by whom? Who attacked this temple? Tell me. मैम Who attacked the क्या Somnath मैम? temple? क्या? Somnath temple was attacked by whom? मैम मोहम्मद 17 times. Who attacked it? Huh? सुल्तान मोहम्मद गजनी। See, Sultan Mahmud of Ghazni, he attacked the Somnath temple 17 times. ठीक है ना, 17 बार मोहम्मद उन्होंने जो है इस मंदिर को लूटा था। ओके, 17 बार उन्होंने जो है इस मंदिर को लूटा था। मैम पेज नंबर बता दीजिए। मैम इट इज देयर बेटा, पेज नंबर 6। मैम ये मंदिर बनवाया कौन था? हाँ मैम रोज इसी टाइप होगा मैम। ना बेटा, only Saturday Ma'am. the class will take place at this time. मैम पर ओके इससे मैम। लूटा क्यों गया था? मैम जो सोमनाथ मंदिर था Page वो number बनवाया 21. कौन? Take out page number 21, all of you. यस मैम Page number 21. यस मैम मैम सोमनाथ मंदिर को बनवाया किसका Have a था? look. See. Have a look. See. यहाँ पे देखो, one of the best known of such rulers is Sultan Mahmud of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Okay. Clear? मैम सोमनाथ You कौन got your बनवाया answer? था? हाँ? यस मैम मैम इस सोमनाथ मंदिर Yes, कौन बनवाया? ma'am. इस मंदिर को लूट के जितना भी ऐश्वर्य उनको मिला था। अब बच्चे, आप लोग पूछ रहे हो कि इस मंदिर को क्यों लूटा गया था? इस मंदिर को इसलिए लूटा गया था क्योंकि इतना मैम क्यों? इसमें अधिक धन था। यस, ठीक है ना। ये जो मंदिर, Because मैम in this इस मंदिर की जो दीवारें थी ना, इतना ना बोलते हो तुम लोग की चिल्ला चिल्ला के। मैम बनवाया कौन था बस ये बता दीजिए सोमनाथ मंदिर को। Right now I am not able to tell. Okay, listen children. देखो, ये मंदिर को मंदिर में जो है वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य जो है इस मंदिर में लगा दिया था। ओके, और इस मंदिर के जो दीवारें थी, दीवारों के ऊपर जो है ओके कलाकारी की गई थी। वहाँ पे जो है ठीक है ना, पेड़ पौधे बनाए गए थे और जो पत्ते थे ना, पत्ते जो है सोने और चांदी के थे, ठीक है ना। और जो फूल थे और फल जो थे वहां पे रत्न जड़ित थे, उसमें जो है बहुमूल्य रत्नों को लगाया गया था। यहाँ तक कि जो इसका द्वार है, सोमनाथ मंदिर का जो द्वार है उस पे भी सोने के पत्र लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर भी जो है सोने के पत्र लगे हुए हैं। एंड द लिंग, ओके, द लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, ओके, इट इज ऑल्सो वेरी मच वैल्यूएबल. So this temple, okay, the king whoever okay constructed this temple, I will let you know. Okay, he utilized all his wealth. He utilized all his wealth to make this temple one of the splendid temples of our subcontinent. Okay, and as such, when Sultan Mahmud of Ghazni he invaded the subcontinent, he came to know about it and he plundered this. He attacked this temple 17 times, and whatever wealth he accumulated, okay, he applied this wealth in the construction of a splendid city, okay, called Ghazni. अपने नाम से जो है उन्होंने एक शहर बसाया, ओके, इसी पैसे से, इसी धन से जो वो लेके गए थे. एंड ही ऑल्सो डिजायर्ड, his last desire was to okay take the door. ओके, वो चाहते थे कि जो दरवाजे हैं, ठीक है ना, मंदिर के जो दरवाजे हैं वो लेके जाएं. बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कैरी द डोर ऑफ द टेंपल थ्रू द माउंटेन passes because these people they were coming through the mountain passes. Okay, yeah, Divyanshi, what problem you have? Yes, Divyanshi, any question? Have a look children, page number 65. See,
Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attacked one another's kingdoms, they often targeted these buildings. In the early 9th century, when the Pandyan king Srimara Sri Vallabha, okay, so see 9th century, we are talking about 9th century, and who is the ruler? The Pandyan ruler. Okay, Srimara, have a look, ध्यान दो, पेज नंबर 65, श्री वल्लभा ऑफ पांड्यन डायनेस्टी। तो ये पांड्य वंश के जो है ये शासक थे, ठीक है ना। जब ये श्रीलंका पे आक्रमण करते हैं, ठीक है ना, जब ये श्रीलंका पे आक्रमण करते हैं, देखो ये क्या करते हैं। ओके, श्रीमरा सी वल्लभा ऑफ पांड्यन डायनेस्टी, ओके, इन्वेडेड श्रीलंका। श्रीलंका को जब इन्वेड करते हैं, व्हाट ही डिड, हैव अ लुक, पेज नंबर 65, सी, he defeated the king there, okay, king Sena won, okay, invaded Sri Lanka and defeated king Sena won। ये जो है, ओके, वहां के जो राजा हैं सेना 1 को पराजित करते हैं और इस पराजय का जो है प्रतिशोध लेते हैं सेना 2। आगे चल के जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, ओके, यू विल सी सेना 2 जो है इसका ये प्रतिशोध लेते हैं। ओके, he takes revenge of the defeat that was, okay, given to Sena 1 by this Srimara Sri Vallabha Pandya। What he is doing, this Pandyan ruler, जब ये आक्रमण कर रहे हैं श्रीलंका पे, ये क्या कर रहे हैं देखो, ओके, देखो धामाकती ने जो है हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है। धामाकती कौन है? ओके, बौद्ध भिक्षुक हैं, ठीक है ना। सी द बुद्धिस्ट मोनार्क एंड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर। ओके, धामाकती नोटेड he removed all the valuables, the statue of the Buddha made entirely of gold, ठीक है ना। भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थी उस मंदिर में थी, ओके, जो स्वर्ण से बनी हुई थी, सोने से बनी हुई थी, ठीक है ना। ओके, उसको वो वहां से हटा लेते हैं इन द ज्वेल पैलेस एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनास्ट्रीज, all these he seized। The blow of the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sena 2, okay, ठीक है ना, Sena 2 ordered his general to invade Madurai, the capital of Pandyas, ठीक है ना। तो सेना द्वितीय जो है वो इसका रिवेंज लेते हैं। और श्रीलंका में 2 भाषा बोली जाती है, एक है सिनालीज और एक है तमिल, ठीक है ना। ये 2 भाषा जो है श्रीलंका में बोली जाती है। यू डू नॉट गेट कंफ्यूज कि सिनालीज क्यों लिखा गया है। ओके, ओके, सो यू सी दिस, व्हाट वी सी इज सेना 2 व्हाट इज डूइंग, सेना 2 अटैक्ड, ओके, द पांड्यन किंगडम, ठीक है ना। द पांड्यन किंगडम कहाँ पे अटैक कर रहे हैं वो? मदुरई में, ठीक है ना। मदुरई पे जो है वो आक्रमण कर रहे हैं, ओके। और आक्रमण करके वो सारी चीजें जो श्री वल्लभा लेके गए थे, ठीक है ना, वो सारी चीजें वो वापस ले आते हैं। तो पहले के जो राजा होते थे लोग, वो अपना सारा कुछ जो है मंदिरों में रख देते थे। अगर बौद्ध धर्म को मानते थे तो जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, जो मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे, उसमें जो है वो सारा इन्वेस्टमेंट कर देते थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड इमेजेस ऑफ बुद्धा, ओके, एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स। So what we are doing? See, one ruler is attacking one kingdom, okay, and his target is what? His target is the temple. He's taking all the idols, all the images. Now again the revenge is being taken. Again the target is what? Again the target is the temple. Okay, so these temples were the center of attraction, ठीक है ना। ये जो मंदिर थे ये जो है आकर्षण के केंद्र थे हर उस आक्रमणकारी के लिए जो किसी और राज्य पे जो है आक्रमण करता था, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ के जो राजा है वो अपना सारा ऐश्वर्य जो है वो मंदिर में ही रखे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है जो कुछ भी करते हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हमारा अगर कुछ भी भला हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं भगवान की असीम
कंपा है हम पे, इसीलिए जो है हमारा भला हो रहा है, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू शो आवर ग्रेटिट्यूड, हम अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अनुदान देते हैं। आप देखेंगे कि शिरडी के जो साईं बाबा है, वहां पे जितना चढ़ावा चढ़ता है, शिरडी के जो साईं बाबा हैं वहां पे जितना चढ़ावा चढ़ता है कहीं नहीं चढ़ता। देश में इतना जो है दान पुण्य कहीं नहीं होता, लोग वहां पे खुल के चढ़ावा चढ़ाते हैं। सोने की ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी, ओके, रत्न चढ़ाते हैं, ओके। जिसकी मुराद पूरी हो जाती है वो वहां पे खुल के जो है अनुदान करता है, ओके। So these are the interesting facts that we have related to our temple. Okay. दिखाइए तो Okay, your maths teacher is waiting for you. Okay, so I'm ending the session here, children. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.